I think 1, 2, 3 guys are there. Amit Morse is there. लास्ट सेशन किसने अटेंड किया था? आप में से किसी से हो? अगर हो तो आप टाइप कर सकते हो मैसेज पे, चैट बॉक्स पे. आई थिंक दीपा इज देयर, दीपा यादव समथिंग. Okay. Okay, let's start. Hello, I will just give you my introduction. My name is Sagar. Hope we have already started with prompt engineering concepts, key what exactly it is and how it is. Yes, Amit Mohar is there. Yes, correct. So, क्या आप मुझे बता सकते हो कि prompt engineering का concept आपको पिछली बार क्या समझा था और क्या अभी तक है आपके पास? जस्ट मुझे इन शॉर्ट बता दो ताकि मैं अलाइन रहूँ आपके माइंडसेट से. कोई भी जो पिछले सेशन में था वही, ताकि सबको समराइज हो और सबको पता चले कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है. आई थिंक मयंक भी था राइट पिछले सेशन पे. हाँ, तो एनीवन हु नोज कि पिछले सेशन पे क्या था और अभी हम थोड़ा रिवाइज करोगे 1-2 लाइन. स्पीक इन इंग्लिश. ओके, ठीक है. Anyone who is from the last session, who have already attended the last session and knows that what we have done till now or what we have done, the prompt engineering concepts, can just give me one glance? Just type the message over there, that's it. If you remember something like that. Do anyone remember? Okay, we learn about the prompt engineering. Okay, great mind. Okay, the concepts, the types, correct? We have learned about the types. Correct, Mayank? Yes, okay, fine, no issue. Amit, you was also there, right? So you have learned the types of prompt engineering. Correct. No problem. Last session, I told you that I will be being a live for the particular website, and this time, whatever I have generated the MVP pattern, I have created a proper website which I will be doing live on very next session over there. I'm going to say within 2 to 3 days, I will be live. I'm doing the live in the production deployment. Today I will showcase the what exactly the website which I've created, exact similar to the MVP. Okay, by the end of the session, that is the guest. Okay, what exactly the live website will be look into. So before starting, let's start today's session. 3 minutes has been passed. So do anyone have the idea of LLM? What is LLM? I just want a short idea. What is LLM? Yeah, so what is LLM? What is LLM? How it is evolved? What is the ancestor? Okay, जैसे I'm talking in English because someone told me that to talk in English very. Okay, so that is why I'm not giving you any vernacular language over there in Hindi, English, Hindi, Marathi. So I will just give you one glance. Like we are the human beings over there. So our ancestor is Stone Age. Okay, so from Stone Age we have evolved and we have come to the particular man, you can say. So like LLM, low level language. Okay. Okay, so like LLM, how it is evolved, what is the starting point rate, and how the LLM going on. Large language model. Okay, it is used to generate human-like intelligence. Okay, you are double graduated, boss. You are more specific to the education. Talk in very low language, and I know only low language. I'm not that much of great minds over there like you, right, Mayank? Right, Amit? So I just want what exactly the LLM and how it is evolved. That's it.
It is used to generate human-like intelligence. Okay, that's right. That's right. Any other guesses? Large language model. Okay, great. That's it. Any other guesses? Any other guesses? सर लास्ट टाइम अपने सेशन लिया था. ओके हाँ, वो आपको याद है. दैट्स ग्रेट. ग्रेट पार्ट कि आपको याद है. आप बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो, मुझे समझ गया. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि LLM क्या है. I have taught you the prompt engineering concept. Now I'm into the brain of the LLM, prompt engineering, that is LLM. So what is LLM? Because we are now starting with the architectural pattern. We are starting with the project. So you have the understanding of the architecture of the particular project. So I wanted to start with the brain of the prompt engineering, that is LLM. So what is LLM, and how does LLM work on it, and what is the evolution? What does it mean? Okay, I was just asking that it is the next part of that large language model. Okay. Typically based on. Okay, Deepa is like mathematician, so he answered in very generic type. Very good. LLM is a type of artificial intelligence program that can recognize and generate text among other. Okay, it is used for designing system. Oh, great, that's great. Different people's different minds, different architecture, different text, different voice, and different mindset. These are the movement. This is a joy which we having 10 different minds, 10 different peoples over there. That's great. But the overall concept which is there, it is same. See, if you read the message of Amit, and if you read the message of you can say Mayank, is exactly similar. Okay, both are saying the same thing, but in different text, different manner. Different text in different manner. So I will just give you a glance. Okay, what is LLM? How it is evolved? And LLM, see, मैं आपको दो चीज बताता हूँ, ठीक है? We have only two AI in the market. Okay, don't get confused, don't get hesitate, don't get anything over it. We have two AI. That's it. One is the business perspective, which will be like forecasting, recommendation, like sales prediction. These are the forecasting. This is one AI, and the other AI is on the basis of learning patterns, relationship between the words. That's great. That's enabling the DCT. That is great. That is great. That is it. So I'll just continue with one AI that will continue to the business perspective, forecasting, sales prediction. Okay. A second AI will perspective of marketing. तो मार्केटिंग में पैसा बहुत है भाई, मार्केटिंग में पैसा बहुत है, तो वो वाले एआई में फोकस करोगे तो आपको पैसा मिलेगा ज्यादा. अभी मैं आपको बताता हूं दो कौन से एआई. एक है मशीन लर्निंग, वन इज मशीन लर्निंग and the second is deep learning. Machine learning focus on sales insight, recommendation. Have I ever used from this two session the word clustering, regression, XGBoost, PCA, SVD? Have I ever used this word? Did I ever use this word till now? अरे मैंने नहीं यूज किया है मेरे भाई, मैंने अभी तक यूज नहीं किया है. मैंने क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, ये मैंने कब बोला? मैंने क्या बोला कि मैंने ये क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, पीसीए, ये कंसेप्ट मशीन लर्निंग के है. हाँ, सुपरवाइज अनसुपरवाइज, करेक्ट. ये जो कंसेप्ट है मशीन लर्निंग के. LLM comes into what? Deep learning, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव. मार्केटिंग समझ रहे हो क्या? दो अलग अलग. Did you get the point? क्या मैंने अभी तक क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, XGBoost, मैं वापस पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू अगेन, हैव आई एवर यूज्ड दिस वर्ड्स? Did you get the point? I didn't use these words like PCA, SVD, model selection. Have I used this word? X train, Y train. Okay, have I? Because we are not into the business insights, we are into the marketing insights.
Did you get the point? Marketing. Did you get the point? So deep learning comes into the marketing insights. I will give you one example. Have you seen Tesla? Tesla. Okay. Tesla. This is a type yes over there. Tesla. Tesla is the perfect example of marketing. ओके. डीप लर्निंग में दो कॉन्सेप्ट. ठीक है. एक है RNN, एक है CNN. हैव यू heard दिस वर्ड RNN CNN? क्या करता है ये? RNN CNN. Have you heard this word? Two words, RNN CNN. What is the full form of RNN CNN? What is the full form? Convolutional, correct. Convolutional neural network, correct. What is the full form? CNN. What is the full form of RNN? Recurrent neural network. Recurrent neural network. So we deal with the world of sequential data. समझ रहे हो क्या? डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डीप लर्निंग, वी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव अपन को चलना है. डीप लर्निंग, we deal with the world of sequential data. ठीक है. I am not focusing on convolutional data, convolutional neural network CNN, because CNN derives and comes and the outcomes over here it into vision. Did you get the point? CNN विजन को फोकस करता है, विजन, और RNN टेक्स्ट को फोकस करता है. Is the point is clear? CNN is focusing on विजन. अगर देखना है, अगर जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टेस्ला, CNN, विजन. ग्रेट एग्जांपल. समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूं मैं? हैव यू हर्ड अबाउट Amazon Go? Have you heard about Amazon Go? Type yes if you not heard. Type no if you don't not heard. If you heard, type yes or no, whatever. Amazon Go, have you heard? क्या करता है Amazon Go? क्या करता है? वो भी कंप्यूटर विजन से बना हुआ है. सुपरमार्केट कंसेप्ट विदाउट, करेक्ट. तो उससे कैमरास लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं. 8 साल पहले उन्होंने वीडियो निकाला था, और हम तभी क्या कर रहे थे? लड़कियां पोनी बांध के स्कूल जाते थे, लड़के ऐसा बाल करके स्कूल जाते थे. इतने छोटे थे तब से ये जो पर्टिकुलर दुनिया है बन रही थी. समझ रहे हो? 8 साल पहले की वीडियो है वो Amazon Go की. CNN कंसेप्ट भी. अरे हाँ, तो ये सही है यार. मयंक तो यार बहुत होशियार है यार. तुम तो यार बहुत होशियार हो. तुम तो मेरे से भी होशियार हो. समझ रहे हो क्या मयंक? CNN. तो व्हाट इज द मेन गोल, मेन पर्सपेक्टिव? LLM का फादर कौन है? RNN. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन CNN बिकॉज CNN का जो कंसेप्ट है वो विजन पे आता है. सो आई एम नॉट फोकसिंग. आई एम फोकसिंग ऑन RNN. RNN के बाद, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बाद, जो 2013 में सीक्वेंशियल डेटा फाइंडिंग्स हुआ, उसके बाद आया LSTM. हैव यू हर्ड अबाउट LSTM? लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. उसके बाद आया लॉन्ग शॉर्ट टर्म, करेक्ट, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी एल्गोरिथम, करेक्ट, LSTM. जो RNN नहीं किया वो LSTM ने किया. अब LSTM में क्या किया कि जो वर्ड को जो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, वो थोड़ा सा एक्यूरेसी पे आया. 2013 की बात है. 2013 में आप लोग क्या कर रहे थे? स्कूल, बराबर, स्कूल जा रहे थे. स्कूल मतलब सोचने की बात है. ये वन नाइट पे ओपन AI ChatGPT नहीं आया है, 2013 से आया है. समझ रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा बेसिक समझो पहला. 2013 से सीक्वेंशियल डेटा का फाइंडिंग हुआ है. ओके, आपका विजन क्लियर करो. अगर आपके बिजनेस इनसाइट्स पे जाना है, देन यू गो विद द मशीन लर्निंग concepts. If you want to go with marketing concepts, then you go with the deep learning concepts.
क्लियर? हैव यू क्लियर द कंसेप्ट? तो आप सब दे रहे हो, टाइप भी करो। समझ में नहीं आ रहा मुझे इसलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अपन जो करते हैं वो डीप लर्निंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग में क्या है कि यार पहले अपन फादर को करते हैं। जैसे अपन स्टोनेज मैन थे, बंदर से, फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ अ मैन दैट कम्स फ्रॉम द स्टोनेज एंसेस्टर्स ओवर देयर। सो फ्रॉम स्टोन एज, देन जो मिडिल एज, फिर अपना फिर मैन में कन्वर्ट हो गए। वैसे ही सेम कंसेप्ट वैसे ही। RNN 2013, फिर आया LSTM। ठीक है, subset of AI, sir. Correct. Deep learning is a subset of AI. Correct. There are two subset: machine learning and deep learning. Is it clear? Is it clear? करेक्ट ना दिनेश? मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, सही बोल रहा हूँ। दिनेश ने सही बोलना चाहिए, बस वो होशियार है अपने इसमें, मुझे लगता है, क्योंकि उसने आंसर दिया है। ठीक है, तो हम अपना फोकस ये करना है कि भैया हमको बिजनेस इनसाइट्स में जाना है। मैं वापस वही बोल रहा हूँ, बिकॉज the problem of the current student is they didn't have the particular idea कि where we want to go। AI के कितने विंग्स है और कितने क्या है। AI के टोटल 5 विंग्स है, आपको पता है ये? AI have overall 5 विंग्स। ओके, 5 विंग्स का 5 डोमेन अभी उभर के आया है, टोटल 5 विंग्स। ओके, मैं अभी वो 5 विंग्स कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अभी मुझे और कुछ कवर करना है। बट ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। इफ यू वांट टू गो विद डीप लर्निंग, देन विजन से करना है, देन यू हैव टू मास्टर द CNN का कंसेप्ट, जो अभी डिराइव होके विद ट्रांसफॉर्मर पे कन्वर्ट हुआ है। अभी मैं ट्रांसफॉर्मर में आऊंगा। ठीक है, अभी RNN के बाद आया LSTM। आप लिख रहे हो ना आप? कुछ नोट डाउन कर रहे हो ना आप? एक सिर्फ मोबाइल पे भी नोट डाउन करोगे तो भी सही है, और कुछ नहीं। ठीक है, RNN के बाद आया LSTM के बाद 2017 के बाद आया ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर की जन्म किसने किया? सिर्फ गेस करो। चैट जीपीटी का जन्म एक फॉरेनर ने किया है। ठीक है, करेक्ट, एकदम करेक्ट। रोहित ने समराइज कर दिया। मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, बिजनेस, ये कंसेप्ट क्लियर रखो। हर क्लासेस में सिर्फ एक ही कोर्स है, डेटा साइंस। ठीक है, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई हमको कहां जाना है। समझ रहे हो? कि नहीं? हाँ, बस ये कंसेप्चुअल क्लियर कर दो, बस एक कंसेप्चुअल क्लियर कर दे, खत्म बात। अब वापस आ रहा हूं मैं। RNN, LSTM, उसके बाद 2017 में ट्रांसफॉर्मर का जन्म हुआ, फाउंडेशन। ठीक है, अब वो किसने किया? एक इंडियन ने किया। हर इंडियन हर जगह पहुंचा हुआ है। आज भी एक इंडियन ने ट्रांसफॉर्मर, द फादर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आशीष वासवानी उनका नाम है। जो सर्च कर लेना, गूगल ब्रेन टीम के साथ थे वो। ठीक है, तो अभी उन्होंने जन्म किया ट्रांसफॉर्मर, और फिर वहां से चालू हुआ अपना GPT सीरीज। क्योंकि LLM जो है इज द आर्किटेक्चर, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से बना हुआ है। विदाउट ट्रांसफॉर्मर देयर वाज नो LLM। समझ रहे हो कि नहीं? अगर फादर ऑफ ट्रांसफॉर्मर आशीष वासवानी ने ट्रांसफॉर्मर बनाया ही नहीं होता, तो LLM का जन्म ही नहीं होता। तो वी शुड थैंक्स टू द इंडियन गाय, आशीष दादा जिसको बोलेगे अपन, आशीष भैया जिसको बोलेगे अपन, या फिर आप आशीष अंकल बोल दो। उन्होंने नहीं किया होता तो आज चैट जीपीटी नहीं होती। आज आप लोग ना ऐसे गूगल में ही टाइप करते होते, लिंक वगैरह क्रिएट करते, चैट जीपीटी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं? डिड यू गेट द पॉइंट? टाइप यस इफ यू गेट द क्लैरिटी। तो आशीष अंकल को हाय थैंक यू बोलो। चैट जीपीटी उनके वजह से आया है। स्टोरी कैसे लगी अपनी? समझ रहे हो कि नहीं? डिड यू गेट द अंडरस्टैंड? हाँ, थैंक यू आशीष अंकल, बराबर। टाइप करो थैंक यू आशीष अंकल, सब लोग टाइप करो। ठीक है, उनको एटलीस्ट दुआ मिल जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो
ये ऐसा स्टोरी है। उसके बाद जीपीटी सीरीज चालू हुआ, ठीक है। वेल एक्सप्लेन सर कंसेप्ट, ओह थैंक यू। वो क्या है, रोहित से मैं सीखता हूँ थोड़ा टेक्निकल शब्द, उसके बाद मैं रिवर्स करता हूँ, तो रोहित के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आई थिंक, मुझे लगता है कभी। ठीक है, तो ये समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आरएनएन गया, एलएसटीएन गया, अभी गया कौन, जीपीटी सीरीज आया। अब जीपीटी सीरीज आया, आने के बाद फिर चालू हुआ बर्थ, BERT। सुना बर्थ, बर्थ क्या नाम सुना, बर्थ? डू निकिता वांट्स टू से समथिंग? Okay, Nikita, hands up किया था actually. So you can type it over in the chat box, if you want to say something, Nikita. तो हाँ, थैंक यू आशीष अंकल। चलो, फिर बर्थ आया, एंड बर्थ का जन्म हुआ, गूगल ने क्या कर दिया। तो ये सारा सीरीज 2017 के बाद आया, जब तब जाके 2025 में चैट जीपीटी, 25 में नहीं, इन द बिटवीन 2017 टू 2025 चैट जीपीटी का जन्म हुआ, जो हम अभी यूज कर रहे हैं विद द एडवांस एलएलएम मॉडल। अब मैं उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। व्हाट इज एलएलएम? एलएलएम इज नथिंग लाइक, इट इज मेड इन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर to exchange the text into contextual text from word to text pattern over there. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है एलएलएम का। इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। समझ रहे हो? यहां तक समझ गए आपको? समझ गए अपन को? यस, यस और नो? टाइप इट ओवर देयर। ओके, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट 3 टॉपिक्स। उसमें से एक टॉपिक है, आपको खुद को होमवर्क है वो करना है, लेकिन 2 टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आप लोग मुझे एंड ऑफ द सेशन में बताओगे कि फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन डू वी नीड टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट्स और डू वी नीड टू क्लियर द फाउंडेशन लेवल ऑफ डीप लर्निंग। ये मुझे आप एंड ऑफ द सेशन में बताओगे, अभी नहीं बताओगे, ठीक है। पर कोई भी प्रोजेक्ट, अभी मैं आपको बताता हूं, कोई भी प्रोजेक्ट आप करोगे तो उसमें से 2, 3 लोग होना चाहिए। कितने लोग होना चाहिए? कितने लोग होना चाहिए? कोई भी प्रोजेक्ट 3, 3 टाइप करो, 3। हाँ, 3 होना चाहिए। वॉट एवर यू हैव, एनी प्रोजेक्ट 3 कंसेप्ट, और यू कैन से 3 लोग उसमें होना चाहिए। अब कौन सा लोग होना चाहिए? पहला एंड फॉरमोस्ट, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर। दीपा वांट्स टू से समथिंग यार। दीपा, यू कैन टाइप इट ओवर देयर और एल्स। एक मिनट, ना कुछ बोलना है क्या आपको? शी रेन्स द हैंड, ओके। ओके, तो 3 लोग होना चाहिए। I've already muted, so you can type it on the particular chat box if you want to say something. Okay. Okay, just a moment. I will on it. Just a moment. I will on it. Okay, I will on it. No problem. Share the screen, turn on. Okay, I have on it. You can just unmute the Deepa and you can just tell me. Deepa? Yeah, hi Sagar. Just a moment. I will just raise the voice. Just a moment. Now it's clear. About which topic you are talking? That is given over our mail. Which topic? Which project? Project is that we will be continuing from the next session a new project based on the prompt engineering. Project Doubt? A doubt will be Technest will be the right person over there. They will guide you for that. Okay, that is given over our email. At least that Technest will inform you how can we proceed it. Okay, but just this project will be just to take care what are the things which we need to take care. Okay. So we don't have to project submission date. No. I will explain you. We have a one week of time. That's what I'm saying. Before the starting of the project, I will just clear today's session so that at the end of the session, I will just ask you what exactly. I will not complete the project individually. This is a group of people. No problem.
That's what I'm saying. That call will be at the end of the session. Okay. Do we Okay. need to do individually or do we need to do it per like group of the session? It's okay. 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 हाँ, नो Okay. प्रॉब्लम। अरे तुम हम दोनों एक साथ ही है, ठीक है, ठीक है। बट एक्चुअली वो जो गिवन है हमारे जो आप लोग के थ्रू साइट पे, लाइक वी हैव टू कंप्लीट फोर एटलीस्ट 4 प्रोजेक्ट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट दीस नो नो नो, प्रोजेक्ट्स? अपार्ट फ्रॉम इट, अपार्ट फ्रॉम इट, ओके, ओके, इट इज अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम, ओके, ओके। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट। तो आपका डेडिकेशन आपके हिसाब से है कि वो करना है नहीं करना एंड है, आप व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट सबमिशन? that the current ongoing cycle you are saying? No, no, this is not current going. No, no. Whatever I will provide you, I will I will inform you. No, I am not talking about like this is current going by you, which is given over our mail. हाँ, We have that to at least, business team will be informing you. No, that's what I'm yeah, saying. but actually there is no, not mentioned deadline of project submission. I hope they have answered you on the chat box. Can you just read it over Please there? refer the chat. Over mail? No, no, on the chat box, Google Meet chat box. Okay. Okay, 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 okay. okay, got the point? Okay, I got it. Fine. No issue. Okay, I'm unmuting it right now. Fine. Okay, so now let's continue. Okay, थोड़ा सा ये हो गया था, क्या बोल रहा था मैं, ही भूल गया अभी, मैं लिंक टूट गया। हाँ हाँ, सो नाउ वी विल फोकस ऑन दी प्रोजेक्ट। अभी कोई भी आप प्रोजेक्ट लो ना, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट लोगे ना आप, हमेशा तीन चीज याद रखना। अभी जस्ट ओपन द चैट बॉक्स, वॉट एवर वी हैव डन इट। ओके, हाँ, सो तीन लोग, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ, तो तीन लोग को ध्यान रखना है आपको। पहला, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर। क्या क्या टाइप ARCH, आर्किटेक्चर, ARCH टाइप इट, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर, ठीक है। अब वो आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में बताओगे? आप कोई भी प्रोजेक्ट लो, कोई भी प्रोजेक्ट लो, अगर ये तीन लोग नहीं होगे ना, सीधा बोलने का कंपनी को, भैया मैं जाता हूं, सीधा बोलने का। और ऐसा मत बोलना बाबा तुम घर पे बैठोगे, तुम मुझे गाली दोगे। उसमें प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी है आपको। उस मैनेजर को बोलना का कि भैया सर जी, कि हम अपनी इस प्रोजेक्ट को हम इम्प्रोवाइज करेंगे, इस ऑप्टिमाइज करेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम, तुमको अपॉर्चुनिटी है, दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट इन द पर्टिकुलर टीम, बिकॉज आपको ये तीन लोग पता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ये तीन लोग पता है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ विद दिस पर्टिकुलर 3 पीपल दैट यू आर द ग्रेट। पहला तो आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर है ना, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ये दो ही टाइप के होते हैं। बड़ा से बड़ा भी जाओ, छोटे से छोटा जाओ, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस। अब मुझे मोनोलिथिक के बारे में बताओ, आपको क्या समझा, और आपको पता है कि नहीं पता है वो मुझे बताओ। चलो, व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? Do you have any idea about monolithic architecture? एक एग्जांपल बता दो, टाइप कर दो मैसेज पे। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर मतलब क्या, माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर मतलब क्या? आपको पता नहीं रहेगा तो आप टाइप कर दो नो करके। नहीं पता है क्या? ओके, ठीक है, चलो चलो, मुझे लगा कि दीपा बोलेगी कि भैया लीनियर अलजेब्रा एक्सप्रेशन मैं बता दूंगी, तो मैं डर गया था एक्चुअली तभी। ठीक है, ओके, दो टाइप का आर्किटेक्चर होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। आप खाते हो, डू यू ईट आउटसाइड द योर एरिया, सैंडविच वगैरह कुछ खाते हो आप? टाइप यस, यमी टाइप करो, यमी, अगर आपको खाना पसंद है तो, ठीक है। हाँ यस, फ्रेंच फ्राइज खाते हो, बाप रे बाप, और क्या क्या खाते हो मुझे बताओ जरा, पिज्जा वगैरह खाते हो कि नहीं? फ्रेंच फ्राइज, बाप रे बाप, खाते हो, बहुत खाते हो, ओके ठीक है। अभी आप है क्या सब कुछ,
ओके, आशीष काफी फूडी लगता है मेरे को, ठीक है। तो आप खाते हो, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में होता क्या है मैं बताता हूँ। आपके पास डिश है, ठीक है, डिश में थाली सिस्टम है, आपके पास थाली सिस्टम है, ठीक है। और थाली में अगर आपका दाल खराब हुआ तो क्या होगा, या फिर दाल में मान लो कॉकरोच आ गया, लड़के को कॉकरोच पसंद नहीं है, मान लो कुछ भी आ गया, दाल ही खराब हो गई, दाल ही खराब थी, तो क्या होगा बताओ, क्या करोगे आप, इंस्टेंट रिएक्शन क्या करोगे, इंस्टेंट रिएक्शन। फूड इज वेस्ट, ओके नो प्रॉब्लम, और क्या, और थ्रो थ्रो फेंक दोगे, और क्या, और क्या होगा बताओ, और क्या होगा, नॉट फॉर ईट, ओके। सोचने की बात है, जिसका सॉफ्टवेयर होता है वो कितना, ट्राई द न्यू वन, ओके। देखो ये भी आ गया वर्ड, रोहित, रोहित ऐसा बोलना मत, ट्राई द न्यू वन। अभी आपको बताता हूँ आपका हिसाब से, जिसका एप्लीकेशन होता है उसको कितना प्रेशर होता रहेगा। जैसे कि मान लो कोई भी एक क्लाइंट है, उसका एप्लीकेशन है और वो टेक टीम है, और टेक टीम ने वो एप्लीकेशन बनाया क्लाइंट के लिए, और कस्टमर से उस एप्लीकेशन को गालियां मिल रही है, लॉगिन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो क्लाइंट कितना गुस्सा होगा, क्योंकि उसने लाखों रुपए का पैसा दिया है। आपने 200 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए खर्च करते हो तो आप थ्रो करोगे। आपने क्या बोला, नॉट फॉर ईट, आपने क्या बोला, ट्राई द न्यू वन। तो सोचने की बात है, प्रेशर देखो, उसने 20 30 लाख रुपए टेक टीम को दिया हुआ है कि भैया ये एप्लीकेशन बनाओ, और वो मार्केट पे लॉन्च करेंगे, और मार्केट में कस्टमर का रिएक्शन ऐसा है, ओटीपी नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, और स्क्रीन नहीं विजिबल नहीं हो रहा है, वॉलेट में पैसा ही नहीं जा रहा है, तो कितना वो क्लाइंट को लगेगा और कितना टेक टीम को गाली दी मिलेगी, अब मुझे बताओ। समझ रहे हो कि नहीं, प्रेशर समझ रहे हो कि नहीं, प्रेशर है, प्रेशर समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें होता क्या है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, हाँ मैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में होता क्या है कि ऐसा आर्किटेक्चर बनता है जिसमें, यानी कि, हाँ, ऐसा आर्किटेक्चर बनता है जिसमें हर, देखो एप्लीकेशन में 4 5 चीजें कॉमन होती है, ठीक है। अपना ऑर्डर, ऑर्डर का ले लो, या फिर अपना पेमेंट का ले लो, ये एप्लीकेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑर्डर पेमेंट, और क्या क्या होता है बताओ बताओ, और क्या होता है, ऑर्डर होता है, पेमेंट होता है, चेकआउट होता है, कार्ट होता है, करेक्ट है, और क्या होता है, और बताओ क्या होता है, ऑर्डर होता है, पेमेंट होता है, चेकआउट होता है, लिस्टिंग होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है, करेक्ट, ये होता है, और क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट में बताओ, और क्या होता है, लोकेशन, लोकेशन होता है, करेक्ट, लोकेशन होता है, करेक्ट, और क्या होता है, करेक्ट करेक्ट, सपोर्ट चैट, दैट्स अ ग्रेट। तो ये सारा का सारा मिश्रण ना, पेमेंट मेथड्स, हाँ, तो ये सारा का सारा जो मैं आप जो लिख रहे हो, ये सारा एक ही इसमें बनता है। अब मान लो आपका जो पेमेंट मेथड है वो खराब हो गया, तो पूरी एप्लीकेशन खराब, समझ रहे हो कि नहीं, फूड का एनालॉजी और ये एग्जांपल समझ रहे हो कि नहीं, दोनों का समझ रहे हो कि नहीं कनेक्शन। अगर आपका पेमेंट मेथड एक ही ढांचे पे, एक ही आर्किटेक्चर पे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है, तो पूरा एप्लीकेशन खराब। तो आपको पता करना होगा कि भैया ये अगर मैंने पार्ट निकाला तो कौन सा पार्ट को इंपैक्ट गिरेगा, ये अगर मैंने पार्ट निकाला, वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। डेवलपर्स के माइंड को पूरा ब्रशअप करना पड़ता है हर बार, हर टाइम पे, क्योंकि वो एक ईट निकालेगा, दूसरा ईट जाएगा, दूसरा ईट जाएगा, तीसरा ईट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट, समझे कि नहीं, क्लियर, आर्किटेक्चर मोनोलिथिक। अब दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज क्या बोलता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है। अब मुझे बताओ, मोनोलिथिक में दाल खराब हुआ तो पूरा खाना फेंक देंगे, अब उसी को थोड़ा ट्विस्ट करके माइक्रो सर्विस बताओ कैसा होगा।
थोड़ा ट्विस्ट करो, माइक्रो सर्विस। थोड़ा सा ट्विस्ट करो, थोड़ा सा। अगर नहीं पता रहेगा तो नो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ट्विस्ट करो, थोड़ा थोड़ा। सॉल्ट इशू आई गेस। हाँ, ओके। ओके, और कुछ? ओके, मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। आप मोनोलिटिक कंसेप्ट क्लियर? हाँ, ओके, मोनोलिटिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो, मैंने अभी तक आपको ये नहीं किया था। ठीक है, मोनोलिटिक आर्किटेक्चर देखो। मोनोलिटिक आर्किटेक्चर सिंगल यूनिफाइड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, such as user interface, business logic and data accessories interconnected and run at a single service. ठीक है, at run at a single service. ठीक है, example e-commerce app where the product catalog, payment gateway, user management and order processing are all built in one code base, deployed together on a single server. All features are tightly integrated. Changes in one module often require to full application testing and deployment. समझे कि नहीं? ठीक है, मैं वापस वापस वो रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं बताता हूं माइक्रो सर्विस मतलब क्या। ठीक है, शायद मैंने स्क्रीन जब शेयर किया तब शायद से आपने पढ़ा भी होगा। ओके, 8/9 shall I end the session now only, Sharmila? No, actually she asked me the question, that's why. ओके ओके, ठीक है, तो नो आया, थैंक यू। मतलब आप एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताता हूँ, आई विल गिव यू माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल, अभी एक एक थाली है। ठीक है, एक थाली है, उसमें एक काउंटर पे दाल आया, रायता आया, चावल आया, चपाती आया, सब्जी आया, मीठे में एक मिठाई आया, स्मॉल मिठाई आ गया। ये एक ही काउंटर से एक ही थाली में आया। ठीक है, आपने बोला दाल खराब है, तो वो काउंटर के पास जाएगा, वो काउंटर रिप्लेस करेगा। करेक्ट है, यही होगा। माइक्रो सर्विस में क्या होगा? दाल के लिए अलग काउंटर, थाली चावल के लिए अलग। अरे वो बनाऊंगा, अभी मैं फिलहाल लिंक्डइन में ही हूँ। तो रोहित, आई विल मेक अ लिंक्डइन नाउ, लिंक्डइन ओनली, सो उतना नहीं मिलता है। हाँ, वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके, सो अभी, हाँ, तो मेरे पास सुनो, माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है? दाल के लिए अलग काउंटर, चावल के लिए अलग काउंटर, फिर रायता के लिए अलग काउंटर। हाँ, सो सब के लिए अलग अलग काउंटर। अब ट्विस्ट है, अगर मान लो आपके पूरे थाली में दाल खराब हो गया, तो आप क्या बोलोगे? आपकी थाली खराब हुई, बराबर है, लेकिन पूरी थाली तो वेस्ट नहीं जाएगी। आप क्या करोगे कि भैया दाल खराब हुई है, तो मैं दाल वाले काउंटर के पास जाता हूं और मैं रिप्लेस करके आता हूं, जिससे मेरी पूरी थाली तो नहीं खराब होगी। लेकिन अगर एक काउंटर होगा मान लो, तो आप लाइन लगाना पड़ेगा, फिर वो खाना एक तो वो फेंकेगा। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे? आई विल जस्ट गिव यू वन, ये रिलेट करता हूं। अगर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपने पहले बोला कि क्या था, क्या था वो? हाँ, पेमेंट मेथड, सपोर्ट चैट, लोकेशन, लिस्टिंग, ये आपने टाइप किया था पहले मैसेज। ठीक है, ये अगर माइक्रो सर्विसेज पे बना होगा तो पूरे एप्लीकेशन को डैमेज करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? माइक्रो सर्विस पे बना होगा तो पूरे एप्लीकेशन को डैमेज नहीं करेगा। मान लो आपका पेमेंट पे प्रॉब्लम है, तो आप पेमेंट वाले माइक्रो सर्विस पे ही फोकस करोगे, आप पूरे एप्लीकेशन को फोकस नहीं करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप अगर पेमेंट वाले में कुछ खराब है, तो पेमेंट वाली टीम क्या करेगी? अरे पेमेंट वाले में खराब है, ओके नो प्रॉब्लम, चलो चलो, हाँ चलो, ये यहाँ पे नहीं, वो वहां का स्ट्रक्चर ही होगा इम्पैक्टेड। इजी फॉर ट्रबल शूटिंग, करेक्ट 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 मैम, करेक्ट। Architecture plays an important role in every application, in every application.
गॉट द पॉइंट? पहला हीरो समझ में आया आपको? आपको समझ में आया ये फर्स्ट हीरो 3 में से? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरा हीरो, ठीक है। अभी अपन ने मोनोलिथिक या माइक्रो सर्विस, मोनोलिथिक अपना एमवीपी, छोटा सा प्रोडक्ट हो, किसको लॉन्च दिखाना है, उसके लिए मोनोलिथिक ठीक है। बड़ा एप्लीकेशन होगा तो हमेशा माइक्रो सर्विस यूज करने का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप अभी सबमिट कर रहे हो, मोनोलिथिक इज फाइन, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। माइक्रो सर्विस बिग आर्किटेक्चर है, ठीक है। 10 जन की टीम है, 3 जन पेमेंट में काम कर रहे, 3 जन ऑर्डर में काम कर रहे, 3 जन सपोर्ट में काम कर रहे, 2 जन, ऐसा सेग्रीगेट करना पड़ता है टीम को, समझ रहे हो कि नहीं? तो पूरे टीम को इम्पैक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ 3 लोगों को इम्पैक्ट होगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन तीनों की कि वो फिक्स करना है इशू, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अरे हाँ तो यार ना बोलो, मैं सही, यस बॉस, बॉस नहीं हूं भाई, मैं बहुत छोटा इंसान हूं ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होगा माइक्रो सर्विस से, जो तुम्हारी टीम होगी ना, वो टीम पूरे के पूरे टीम को प्रेशर नहीं होगा, वो पूरे के पूरी टीम सजा नहीं भुगतेगी, वो पूरे के पूरे टीम इंपैक्ट नहीं होगी, वो सिर्फ 2 या 3 लोग ही इंपैक्ट होंगे, बाकी की टीम अपने अपने कॉन्सेंट्रेट करेगी अपने अपने एफिशिएंट लेवल पे ऊपर। ये होगा आर्किटेक्चर, 3 में से एक हीरो आर्किटेक्चर। दूसरा हीरो कौन है? दूसरा हीरो गेटवे। बहुत सारे गेटवे है, बहुत सारे, ठीक है। मैंने पीपीटी में नोट डाउन किए है 2-3 गेटवे, ठीक है। उसमें से मेरा जो फेवरेट गेटवे है मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन मेरे को आपको वो शेयर करूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे गेटवे, जिसको बोलेंगे एपीआई गेटवे। क्या बोलेंगे? क्या आपको पता है एपीआई गेटवे मतलब क्या? बताओ बताओ, एपीआई गेटवे वर्ड का मीनिंग क्या है? बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ये करो, एपीआई गेटवे मतलब क्या? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, देसी टी भी बोल सकते हैं, वैष्णवी भी बोल सकते हैं, प्रतिभा भी बोल सकते हैं, और कौन है, आर्यन भी बोल सकता है, आर्यन सेठ ये भी बोल सकता है, हर कोई बोल सकता है, ठीक है। AWS एपीआई गेटवे, ओके, वाह, वेरी गुड। और कुछ, और कुछ थोड़ा सा जो नहीं बोल रहे वो भी बोलो यार, समझ में आएगा ना, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा आपके आंसर्स। गलत तो गलत, कोई इश्यू नहीं, कोई मारने वाला नहीं है, ठीक है। आपको बताता हूँ एपीआई का गेटवे का मीनिंग क्या है। रिक्वेस्ट राउटिंग, ओ ग्रेट, ये पढ़ा लिखा इंसान है, आशीष धीमान, ग्रेट। रिकॉर्डिंग, सिंगल एंट्री पॉइंट फॉर क्लाइंट्स, ओके ग्रेट। मैथमेटिशियन लोग बहुत होशियार होते हैं और वो हमेशा प्रूफ करते हैं, ठीक है। आपको बताता हूं मैं एपीआई गेटवे, द वर्ड एपीआई गेटवे, अगर ये दूसरा हीरो नहीं होगा प्रोजेक्ट में, इसको इम्प्रोवाइज करो। से मैं वापस ये बोल रहा हूं, आप ना, जो भी आप मेरे साथ हो ना, मैं चाहता हूं कि आप मेरे से ज्यादा पढ़ो लिखो, मेरे से ज्यादा इस पूरे बोलते हैं ना कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करो, ठीक है। आप अपनी काम पे जाओगे, मैनेजर के पास जाओगे, मैनेजर को भी कुछ शायद से पता भी होगा, पता नहीं होगा, लेकिन आप अपना 100% दो। ये इंटेंशन से मैं आपको समझा रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? ओके, सर्वर एंड चैनल, ग्रेट 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 ग्रेट। आपको बताता हूं मैं एपीआई गेटवे क्या है। वर्ड एपीआई गेटवे, अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको एनालॉजी बताता हूं मैं आपका, जैसे कि अपना काउंटर है, ठीक है। दाल यहां से आया, ये क्या बोलते हैं उसको, चावल यहां से आया, रायता यहां से आया, 4 से 5 अलग अलग काउंटर है, अलग अलग काउंटर से ये आया, फूड आया, और एक थाली बन गई, ठीक है। अब थाली बन गई, ठीक है। अब थाली बनने के बाद अपने को इसमें क्या क्या बेनिफिट हुआ, और अगर एक ही काउंटर से थाली आता तो क्या लॉस होता, ये मुझे बता सकते, इतना बताओ। चलो ये तो गया साइड में। सब लोग स्कूल तो गए होंगे, राइट? स्कूल में जब जाते हो तब आपको क्या दिखता है?
आपको पहला कौन दिखता है, दूसरा कौन दिखता है, तीसरा कौन दिखता है, वो बताओ मुझे, स्कूल का बताओ। चलो, टाइम ऑफ लोडिंग एक्स्ट्रा चैनल बिटवीन, ओके ठीक है। वॉचमैन, ओके, स्कूल गेट, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग स्कूल गए हो मतलब, वेरी गुड। स्कूल बिल्डिंग, अरे बाप रे बाप, बिल्डिंग तक पहुंच गए। और स्कूल, स्कूल बताओ, स्कूल, क्लास गेट, करेक्ट। जो वॉचमैन है ना, वही तुम्हारा एपीआई गेटवे है। अभी हम जो बात करेंगे कौन सा गेटवे का, एक ही गेटवे है जो ओपन सोर्स है और जो सही से काम करेगा। अब बताता हूं मैं कैसा। मान लो, टेक्निकली बता रहा हूं मैं, अभी अभी कोई एग्जांपल नहीं बता रहा हूं। मान लो कि आपको अपने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूटिलाइज किया है। ऑर्डर, सपोर्ट, चैट, पेमेंट, ये चार अलग अलग माइक्रो सर्विसेज है जो रन हो रही है। अब इनकी जो सर्विसेज है वो एक गेटवे पे लगी हुई है, एक गेटवे पे लगी हुई है। अब ये जो गेटवे है वो राउट करेगा कि मान लो अगर किसी ने पेमेंट के बारे में किया है तो वो पेमेंट पे जाएगा, अगर किसी ने ऑर्डर का किया है तो वो ऑर्डर पे जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एपीआई गेटवे, वॉचमैन, वॉचमैन विल मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी जो पेरेंट्स है तो रुको, अगर आप बच्चे हो तो जाओ, अगर 8 बजे है, 7 बजे का स्कूल है तो रुको, प्रिंसिपल को कॉल करती हूँ। समझे कि नहीं? वॉचमैन, एपीआई गेटवे इज अ वॉचमैन, और अपना एपीआई गेटवे एक ही है, वो है कॉम। कॉम, कॉम हमेशा यूज करना। ये हमारा दूसरा हीरो, तीन में से दूसरा हीरो कौन है? कॉम। पहला तो आर्किटेक्चर, फिर है कॉम, एपीआई गेटवे कॉम। समझे कि नहीं? टाइप करो कॉम, टाइप करो, टाइप करो कॉम, टाइप करो, प्लीज प्लीज टाइप करो ताकि सबको मालूम पड़े। कॉम, कॉम क्या करेगा? ये राउटिंग करेगा, ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हारे सिस्टम पे एपीआई गेटवे नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रेट लिमिटिंग। एक टाइम पे अगर तुम्हारा 1000 रिक्वेस्ट आ गया ना, तुम्हारा एप्लीकेशन बंद पड़ जाता है। आपको पता है, अगर गेटवे नहीं लगा तो उसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग। उससे रेट लिमिटिंग कंट्रोल होता है, थ्रॉटलिंग कंट्रोल होता है। अब ये थ्रॉटलिंग, रेट लिमिटिंग आपको बाउंसर जाएगा। आपको मैं एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, रेट लिमिटिंग मतलब क्या है। अगर मान लो 1000 लोग, अगर एक स्कूल का गेट है, वो स्कूल के गेट में से अगर 10 लोग आएंगे तो ओके, लेकिन वही स्कूल के गेट में से अगर 1000 लोग आएंगे तो क्या जा पाएंगे? क्या जा पाएंगे? हाँ, तो वो जो है रेट लिमिटिंग का कंसेप्ट क्लियर करता है, ठीक है। थ्रॉटलिंग का कंसेप्ट क्लियर करता है, कैशिंग का कंसेप्ट क्लियर करता है। एपीआई गेटवे जिस प्रोजेक्ट में नहीं है वो प्रोजेक्ट आज नहीं तो कल बैठ ही जाएगा। समझ रहे हो? दूसरा हीरो समझ गए तो आपको? आर्किटेक्चर पहला हीरो, दूसरा हीरो क्या? कॉम, ठीक है। अभी जब मैंने बोला था स्टार्ट में सेशन पे कि मैं तीसरा हीरो आपको बताऊंगा नहीं, तीसरा हीरो आपको करना है, और मैं तीसरा हीरो के बारे में बताऊंगा, पर वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो आपको पता होना चाहिए खुद से, ठीक है। और तीसरा हीरो का नाम है डॉकर। डॉकर नाम सुना? डॉकर, क्या डॉकर क्या करता है? डॉकर क्या करता है? सिंपल लैंग्वेज में डॉकर, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में हर प्रोजेक्ट की डॉकर फाइल होनी चाहिए। हर प्रोजेक्ट की डॉकर फाइल होनी चाहिए। डॉकर क्या करता है? अब क्या करता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तीसरा हीरो के बारे में आप खुद उसका स्टडी करोगे और आप खुद ही बताओगे, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो मैं चाहता हूं कि वो आप खुद उसको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। तो आपको 3 हीरो समझ में आया प्रोजेक्ट के? बताओ जरा इन शॉर्ट बताओ। शिपिंग, बिल्डिंग, रनिंग, ओके। और अब 3 हीरो बताओ कौन है? प्रोजेक्ट के 3 हीरो कौन है बताओ?
बताओ 3 हीरो कौन है? एपीआई गेटवे डॉकर, और कौन है? आर्किटेक्चर, करेक्ट। आर्किटेक्चर में मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस, फिर एपीआई गेटवे में कॉन्ग, और यहाँ पे डॉकर। 3 हीरो, अगर कोई भी, डॉकर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गेटवे आता है मिडल लेयर, ठीक है, और आर्किटेक्चर मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस वो जो होगा वो ही होगा बेस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आप कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज वेरी वेरी वेरी, यू कैन से वेरी क्रूशियल इन द प्रोजेक्ट। ओके, तो दैट इज वेरी क्रूशियल ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर देयर, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज, अभी इसी के बेसिस पे अब हम अगले सेशंस कंटिन्यू करेंगे विद द प्रोजेक्ट। समझ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था ताकि आपको समझे कि प्रोजेक्ट की पाइपलाइन कैसी होगी, प्रोजेक्ट का फाउंडेशन लेवल कैसा होगा। बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन फाउंडेशन बेसमेंट तक कितना खड्डा लेना है। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये समझ में आया ये क्यों था इंपॉर्टेंट? हाँ, ठीक है। अभी आपको एलएलएम समझ में आया, आप बहुत होशियार हो गए। अभी आपको आर्किटेक्चर समझ में आया, ठीक है, आपको गेटवे समझ में आया, आपको डॉकर समझ में आया, ठीक है। अभी आपका ना नेक्स्ट सेशन चालू होगा प्रोजेक्ट, पर उसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि मैंने जो अपना एमवीपी था वो मैंने वेबसाइट पे कन्वर्ट किया है। अभी मैं लॉन्च करूंगा वो उसकी वेबसाइट, ठीक है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। ठीक है, ये अपना प्रोजेक्ट, चैट में बताओ कैसा लगा इसका विजुअलाइजेशन। चैट में बताओ यही, बता रहे हो ना? बताओ बताओ, ठीक है। तो ये अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। जॉब सीकर, स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टर। सॉफ्टवेयर टेस्टर मैंने अलग से टेस्टिंग के लिए बनाया था, लेकिन जॉब सीकर है तो यहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी आइडियाज है वो आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आइडिया टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब ये टोन है जो मैंने आपको बताया था, टेक्निकल चाहिए, क्रेडिट चाहिए, फॉर्मल चाहिए, ठीक है, वैसा कर सकते हो। अब जादू, प्रॉम्प्ट जनरेट होगा। प्रॉम्प्ट जनरेट का देखो, ये आ गए प्रॉम्प्ट हमारे इतने सारे, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अभी देखो, इसमें देखो अभी मैंने क्या चेंजेस किया है बता रहा हूँ। 5 प्रॉम्प्ट जनरेट होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब मेरा जो आइडिया था वो क्या था कि फॉलो अप मैसेज आफ्टर जॉब इंटरव्यू, ठीक है। अब जॉब इंटरव्यू के लिए सपोज ये प्रॉम्प्ट चाहिए, तो मैंने जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये मैं और सोच रहा हूँ क्या क्या करना है करके, तो मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने मराठी में भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एआई डिटेक्टर टूल्स ये मैंने ऐड किया। अब इसमें क्या होता क्या है कि जो आपको मान लो जीपीटी में चालू करूंगा मैं, और जीपीटी में दूंगा मैं ये जो पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो अभी ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे दूंगा तो उसका जो आंसर्स मिलेगा, उसका अभी जो आंसर मिलेगा, ये जितने भी आंसर चाहिए वो आंसर मिल गया मान लो। मैं आपको इंग्लिश में करता हूँ क्योंकि शायद से बहुत लोगों को मराठी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये अब ये इंग्लिश में मैंने प्रॉम्प्ट टाइप किया, ठीक है। प्रॉम्प्ट आ गया ये। अब प्रॉम्प्ट आने के बाद सारा का सारा चीज आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया, टाइप हो रहा है, टाइप हो रहा है, टाइप हो रहा है। कौन है भाई यहाँ पे, कौन आ रहा है? अच्छा यहाँ पे है क्या? मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कहाँ पे है। कोई तो आ रहा है अभी। एक मिनट, एडमिट। हाँ, तो यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है,
यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है AI डिटेक्टर। आप GPT-0 में जा सकते हो, आप जीरो GPT में जा सकते हो, और ये जो यूज केसेस टूल है आप इसमें जाते हो। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि भाई हमारे भारत ने भी बनाया है GPT। बोलो जय भारत, टाइप करो। अरे अपने इंडियन ने कुछ किया है यार, आशीष अंकल को टैग करो तो आपने इसको तो करो। भारत का भी आ गया है, जय भारत टाइप करो, जय भारत। हाँ, जो भी इंडियन लोगों ने करते हैं ना, तो मुझे बहुत फक्र होता है, बहुत बहुत प्राउड फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भारत जीपीटी किया है यहाँ पे चालू। अब यहाँ पे जा सकते हो, राइट सोनिक किया है, LM स्टूडियो भी यूज किया है। GPT-0 में आप जा सकते हो, मान लो GPT-0 में डिटेक्टर में आ गया, तो ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये ह्यूमनाइज है कि मशीन ने बनाया है। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसको लिख सकते हो। उसको लिख सकते हो, स्कैन कर सकते हो, और आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपको एक फीचर मिल जाएगा, ठीक है, और आपका जो पर्टिकुलर चीज है वो इफेक्टिवली मिले। देखो ये सारा चीज है, और फिर ये आप उसको ह्यूमनाइज भी एक दे सकते हो। 91% AI जनरेटेड, 1% मिक्स, 8% ह्यूमनाइज। इसको आप ह्यूमनाइज भी कर सकते हो बाद में। ठीक है, अब वो ह्यूमनाइज कैसे करना है ये अभी आपको बाद में बताऊंगा मैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कैसा लगा आपको मेरा साइट? अच्छा लगा कि नहीं लगा? सब लोग बोलो यार। ठीक है, तो ये आपके लिए मेहनत हो रही है भाई, पूरी की पूरी। हाँ, लिंक ऑफ प्रॉम्प्ट जनरेटर, हाँ हाँ दूंगा ना, अरे क्यों नहीं दूंगा, दूंगा दूंगा, सब सब दूंगा, सब दूंगा। ठीक है, तो अभी ये चालू है इसका, ये थोड़ा थोड़ा चीज चालू है उसके ऊपर। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, थैंक यू सर। मेगा मेगा पहली बार वो बात कर रही है, मेगा श्याम पलसेट्टी। ओके, तो प्रॉम्प्ट लिखने की अभी जरूरत नहीं है आपके लिए। अभी पूरा का पूरा टेक्स्ट जनरेट, प्री टेम्पलेट जनरेट होगा, और आपको सही से आंसर मिलेगा, और आपको इफेक्टिवली आंसर मिलेगा। तो ये सारा का सारा चालू है, उसकी मेहनत चालू है उसके ऊपर। ठीक है, 2 दिन मैं गया था बाहर, एक्चुअली पिकनिक में गया था, तो पिकनिक में था मैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला। थोड़ा सा मैं भी एंजॉय किया, चलेगा ना? नो प्रॉब्लम। हम्म, नो प्रॉब्लम ना, मैं अगर मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँ थोड़ा। ठीक है, ये कौन बोले यार गुड, ये वाला गुड वाला अच्छा मिला है, चलो। नो प्रॉब्लम सर, नो फुल फुल कैरी ऑन, ओके ओके। मुझे लगा फुल कैरी ऑन के बदले आप लिखोगे फुल कैरी मिनाती। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये पूरी मेहनत चालू है पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करने की। तो आपका समराइज करता हूँ पूरे लेक्चर का कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, डीप लर्निंग कंसेप्ट किस में आता है? किस में आता है डीप लर्निंग कंसेप्ट? कौन से फील्ड में आता है? मार्केटिंग, करेक्ट करेक्ट। और मशीन लर्निंग कंसेप्ट किस में आता है? बिजनेस, करेक्ट। हम कभी भी क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, एग्जीबूल्स, पीसीए, एसवीडी ये टर्म्स कभी यूज नहीं करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ये कभी भी टर्म्स यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? वी आर डीप लर्नर्स। हाँ, ये कंसेप्ट, ये गोल क्लियर कर दो, रख दो आप अपना, ये गोल क्लियर कर दो, ये कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, और अभी आपका माइंड ना काफी ब्रांचेस अभी ओपन हुए रहेंगे कि अभी हमको करना क्या है आगे जाके। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? कंफ्यूज नहीं होने का एआई में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो यार, मुझे आप सब लोग आए। ठीक है, hope everyone has enjoyed the session, hope everyone has got the idea. Okay, uh,
वेबिनार अटेंडीज एंड ये यही मैं आपको देने वाला था अभी, फॉलो अप लिंक और वेबिनार अटेंडीज। आप मेरा काम टेकनेस्ट वालों ने कर दिया। अभी आप कैसे भी करके आपको सर्टिफिकेट अगर चाहिए होगी, ठीक है, आपको तो चाहिए मुझे पता है, लेकिन ये आर्किटेक्चर लेवल, ये जो ब्रशअप है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और सर्टिफिकेट के लिए लिंक दिया है चैट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में प्लीज़ आप उसमें फिलअप करो, ताकि हमको पता चले कि भाई इतने अटेंडीज थे और इनको इतने सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ठीक है। बिकॉज आपको जितनी बार सर्टिफिकेट्स मिलोगे उतना अच्छा होगा। आपको चाहिए तो मैं, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दे देता हूँ, ठीक है। क्या है ना, टीचिंग में इतना खो जाता हूँ ना कि मुझे समझ में ही नहीं आता है, और मैं वो पीपीटी इतना बनाता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वो पीपीटी कब खोलना है, क्योंकि वो इतना कंटिन्यूस फ्लो होता है। तो सॉरी, अगर मैंने पीपीटी अगर भी चाहिए रहेगा तो मुझे बता दो, मैं आपको वो भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं। कि मेरी आदत नहीं है पीपीटी वगैरह शेयर करना वगैरह, तो आई नो माई सेल्फ कि ये तो सब मतलब ये रोज का ही है, इसलिए मैं पीपीटी वगैरह इतना ये सोचता नहीं है, ठीक है। टेकनेस वालों ने बोला यूट्यूब का वीडियो भी जल्दी से शेयर हो जाएगा, तो शेयर हो जाएगा, बिकॉज वो टीम जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो ये है, आपको मैंने दे दिया वो, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन, आप जल्दी से अपना ये जो पर्टिकुलर चीज़ें है वो भर दो, ठीक है, ताकि सर्टिफिकेट्स देने में हमको काफ़ी आसान हो, ठीक है। Any question on the particular subject which we have teach? So now on the basis of this, we will evaluate, or I will evaluate especially, okay, with the project or with the, you can say, the advancement of deep learning. तो किस में सीखना पसंद करोगे, प्रोजेक्ट या स्टडीज? आप चैट में मुझे बताओ। आरएनएन के कंसेप्ट को क्लियर करोगे, एलएलएम के कंसेप्ट को क्लियर करोगे, प्रॉब्लम के कंसेप्ट को क्लियर करोगे, या प्रोजेक्ट करोगे? If you want to do project, type project. If you want to do advancement of the study, type advance, ADVE, बस समझ जाएंगे हम लोग। प्रोजेक्ट, ओके। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको सबको? प्रोजेक्ट 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 ही चाहिए, प्रोजेक्ट ही चाहिए। मेगा मेगा ने ये बोला है, मेगा पूरा सेशन नहीं बोला, लेकिन आज अभी बोल दिया, ठीक है। अच्छा, मैं तो 2 मिनट के लिए मैं माइक ऑफ ऑन करता हूँ, किसको बोलना है तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है, कोई इशू नहीं। माइक इज ऑन, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन से, ओके। प्रोजेक्ट माइक ऑन है, अगर किसको बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मेघा मेघा शाम है, ओके ओके। प्रोजेक्ट, थैंक्स। So can we quit the session for today's now? Okay, मैंने दिया है सब कुछ, तो नेक्स्ट इसमें अपन प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, और इसको कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, उसमें हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हीरो याद रखना, मुझे याद मत रखो, लेकिन हीरो को याद रखो। 3 हीरो कौन से है वो टाइप कर दो, मैंने लिंक्डइन आईडी दिया है ऑलरेडी यार। फैंटास्टिक सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, आशीष अंकल को भी थैंक यू करना, ठीक है। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो ये कर दो, नेक्स्ट सेशन पे आएंगे विद न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया है, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं रखता हूँ, अभी मैं सिर्फ लिंक्डइन में डालने वाला हूँ वैसे भी पोस्ट को, तो आप तभी मुझे अच्छा कमेंट उसमें मुझे बता देना कि कैसा करना है, क्या करना है, ठीक, ऑटोमेटिकली सर। नहीं, आप वो फॉर्म है ना टेक्नेस, हमने फॉर्म दिया है ना, देखो ना, वो फॉर्म फिलअप करो,
Mega, you fill up the particular form which Technus just posted. Forms.gle. ठीक है, BYIXZ ये जो दिया है ना, वो आप उसमें फिलअप करो ताकि आपको सर्टिफिकेट मिले। बिकॉज ये मीटिंग और ये जो सेशन का यही मोटिव है कि आपको मालूम पड़े। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन? डॉकर के बारे में पढ़ना और मेरे अपडेटेड पोस्ट में आप डॉकर के डेफिनेशन में लोगे चलेगा, कोई इशू नहीं। डॉकर क्या करता है, डॉकर बिना डॉकर के प्रोजेक्ट को हाथ मत लगाना, मैं बस वही बोल रहा हूं। ठीक है, चलो लेट्स लीव, एवरीवन कैन लिफ्ट इट अप, नो प्रॉब्लम।